कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरण है, करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही बोल आप जी ने श्रवण कीते। सिंह साहिब की रसना तो ये अगम्मी बोल सोरठ राग विच ते शांति दे पंज धन गुरु अर्जन देव साहिब दे। आप जी दे पावन बोल हन कि इस रूहे ज़मीं ते आउण दा इको एक मकसद है, और जे किधरे ये मकसद विच कामयाब नहीं होए फिर हशर की होएगा। मैं आप जी नूं अर्ज करां कि मनुख कितना भी चंगा होवे, चंगे तो चंगे मनुख विच भी कोई ना कोई अवगुण जरूर होवेगा, जरूर होवेगा। और मनुख कितना भी अपराधी होवे, कितना भी दुराचारी होवे, किते ना किते एक दो गुण जरूर होणगे। ये कुदरत दा नियम है। पूर्ण तौर ते कोई भी तामसी नहीं है, पूर्ण तौर ते कोई भी राजसी नहीं है, पूर्ण तौर ते कोई भी सात्विक नहीं है। ते फिर जदों रूहे ज़मीं तो वो रुखसत करदा है तो जेड़े उसने पाप कीते हन उहदी तां सज़ा मिलनी है, पर जिहड़े पुण्य कीते हन उन्हां दा की होवेगा। तो मैं आप जी नूं अर्ज करां, पुण्य दा भी फल है, पाप दा भी फल है। जे पाप दा भी फल है तो पुण्य दा भी फल है। तो कहंदे ने जीवन मुक्त कौन है? जीवन मुक्त वो है जिहदे सामने पाप ते पुण्य इक्को वर्गे हो गए, इक्को वर्गे। जदों इक्को वर्गे हो जाते ने, ऐसे मनुख तो फिर कोई पाप भी नहीं होंदा, फिर कोई पुण्य भी नहीं होंदा। थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि पाप करन वास्ते भी दूजा चाहिदा है और पुण्य करन वास्ते भी दूजा चाहिदा है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜਾਪਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾਪਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਰਗ ਔਰ ਨਰਕ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4ਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, 5ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 5ਵੀਂ। ਔਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ। ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੇ ਹਾਰ, ਬਹੁਬਿਦ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕਿਤਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਮੰਦੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ 100% ਹੀ, ਜੇ 100% ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90% ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ 5% ਰਜੋਗੁਣ ਹੈ, 5% ਸਤੋਗੁਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਗੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਲਾ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਛੁਰੀ ਵੀ ਘੋਂਪਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ।
एक चोर, एक जार, एक जुआरी। जिहड़ा चोरी करन वाला या फिर दुराचारी, दुराचार करन वाला या फिर जुआ खेडण वाला, आप जी नूं इस गल की खबर मिल जाए कि तू सिख हो के चोरी करदा पिया, चंगा नहीं लगता। तू सिख हो के दुराचारी बन के बैठा होया, चंगा नहीं लगता। तो सिख हो के जुआ खेडदा पिया है, चंगा नहीं लगता, चंगा नहीं लगता। पर आप जी नूं मैं अर्ज करा, इस गल नूं समझना ते पंक्ति नूं होर पासे ना ले जाना ते उहदा फायदा ना चुकना। गुरु साहिब महाराज कहते हैं कि मैं चोर नूं भी बख्श लवांगा, बख्श लवांगा। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच चोर भी बख्शे गए ने। अगां चल के की कहते ने, मैं दुराचारी नूं भी बख्श लवांगा। गन का पापण होई के पापां दा गलहार परोत, मैं जुआरी नूं भी बख्श लवांगा। पर इन्हां तिन्हां तो वध पापी कौन है? धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कहते ने कि चोर, जार, जुआर ते बुरा, अनहोंदा भार निंदक सिरदारा। जिहड़ा किसी की निंदा करता है मैं उसनों नहीं बख्शांगा, जिहड़ा हंकार करता है मैं उसनों नहीं बख्शांगा। और रोज़ आप जी सुनते हो अहंकारियां निंदकां पिठ दे, और गुस्ताखी माफ असी रोज़ निंदा करते हैं, कदे किसे दी, कदे किसे दी, कदे किसे दी, रोज़ निंदा करते हैं। जे आप जी निंदा नहीं करते, मजबूरन निंदा सुननी पै जाती है, मजबूरन की करिए, मना भी नहीं करते। मैं फिर गल दोहरा देवां, चोरी करनी पाप है पर नहीं है, उतना नहीं है। दुराचार करना पाप है पर उतना नहीं है जितना पाप किसी की निंदा करनी। जुआ खेडनी गलत है, पर कहते ने किसी की निंदा करनी उस तो भी गलत है। और साहिब ने बाणी विच कह दिता, निंदा भली किसे की नहीं, मनमुख मुगद करन मोह काले तिना निंदका नरके घोर पवन। एक साफ गल कह दी है, निंदक दा मुँह काला, इत्थे भी उत्थे भी। बंदगी ना हो सके कोई गल नहीं है, पर निंदा ना करना, निंदा ना करना। जे पुण्य नहीं होंदा ना सही, पर निंदा ना करना। जे पुण्य नहीं होंदा ना सही, पर हंकार दे गीत ना गाना, ना गाना। क्योंकि कल की एक छोटी जी घटना मैं आप जी के सामने रखा। मैं घटना सुन के और तस्वीर देख के मैं एकदम ही विचलित हो गया कि हंकार किस तरह करिए, मैंने तो समझ नहीं आता। क्योंकि कथा करदियां करदियां बहुत बार मैं अनुभव किया है कि बोल रुक जाते हैं, एक शब्द भी सामने नहीं आता कि मैं की बोला, एक भी नहीं आता, जबान ही रुक जाती है। हुण जे किधरे मैं कहां कि कथा मैं करदा पिया तो जदों जबान ही रुक जाती, करके दिखा। कल दी घटना, घर विच दादा जी बैठे ने, दादी जी बैठी है, पुत्र भी बैठा है, नूह रानी भी बैठी है, दो पोतरे बैठे ने, एक पोतरी बैठी है। 7 जीव हो गए ते 7 ही जीव मौज नाल बैठे हुए ने, मैच देखते पे ने, एको ही कमरे विच बैठ के।
तो दादी माँ कहती है कि तुसी मैच वेखो, मैं पड़ोसन के घरों हो के आंदी। तो वो पड़ोसन के घर गई है। इन्नी देर दे विच उन्हां दे घर विच धमाका होया। फ्रिज दे विच जो एक पिछे बम लग्या हुंदा है वो फट गया, जिहदे विच गैस होंदी है। वो बम तो घट नहीं है, वो चाहे एसी विच होवे चाहे फ्रिज विच होवे, वो फट गया। कहते ने 6 ਦੇ 6 बंदे उत्थे ही पूरे हो गए ऑन सपोर्ट। दादा भी पूरा हो गया, पुत्र भी पूरा हो गया, नूह राणी भी पूरी हो गई, 2 पोतरे भी पूरे हो गए, पोतरी भी पूरी। ये पंजाब की गल है। वो दादी माँ जो मुड़ के आती है, मंजर देखती है तो खुदा नूं की कहती है, कहती है, ए खुदा मैनू क्यों भेज दिता सी तू पड़ोसन दे घर, हुण मैं रह के करना की है, मैं करना की। अकेली दादी माँ ने 6 बंदियां का संस्कार किया इकट्ठे ही, इकट्ठे। वो कहती जे किधरे किसी ने बुखार होंदा मैं बर्दाश्त कर लेंदी, कोविड विच चले जाते मैं बर्दाश्त कर लेंदी, घट तो घट ये तो कहती कि कोविड विच गए ने, लेकिन ना कोई बुखार है, ना कोई सिर दर्द है, ना कोई पीड़ा है। हसदे खेडते मैं छड्ड के गई हाँ, देखदियां देखदियां गल कर। तो मैं कई बार अर्ज करना हाँ कि हंकार किस गल दा, जदों कि कुछ है ही नहीं। जल की भींत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। पता नहीं इस रुख नूं किस वेले छड्ड दवे पंछी, पता नहीं। रुख ते पंछी बैठा होवे ते आप जी ऐलानिया नहीं कह सकते कि ये पंछी इतनी देर ही बैठेगा, कदे भी उड़ सकता है। साडे विच बैठा होया पंछी वो किसी वेले भी उड़ सकता है, किसी वेले भी। ना जवानी की गल है, ना बुढ़ेपे की गल है, ना बचपना की गल है, किसी वेले भी उड़ सकता है। इत्थे मैंने एक छोटी जी गल याद है, कोई सूफी फकीरां दी। किसी ने कहा कि ये जो असी सिमरन करते हाँ वाहिगुरू दा, ओम दा, ओंकार दा, अल्लाह दा, अल्लाहू दा, तो ऐसा लगता है कि एक शब्द नूं असी वार वार जपते हाँ, रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं। कि ये दोहराना चंगा है? इको शब्द नूं वार वार दोहराना, वार वार। तो जिस संत नूं सवाल किया उसने एक जवाब दिता, कहने लगे इस करके वार वार दोहराना पैंदा है कि पता नहीं वो किहड़ी घड़ी आवे कि जिस घड़ी दे विच प्रभु दे नाल तार जुड़ जावे, इस करके वार वार जपदे ही रहिए, जपदे ही रहिए, जपदे। इस्लाम धर्म की कहता है? शब्द नूं देखना ते सुनना। इस्लाम धर्म की जो नमाज है, जो कलमा है, अरबी विच है, उसका शाब्दिक अर्थ है कोई खुदा नहीं है सिवाय खुदा के और उसके पैगंबर मोहम्मद साहब के। मैं फिर पंक्ति दोहरा दूँ, कोई खुदा नहीं है सिवाय खुदा के और उसके रसूल मोहम्मद के। तो जेडे सूफी फकीर होंदे ने वो कलमा नहीं पढ़ते, इस तरह का नहीं पढ़ते। भावें कि सूफी फकीरां दे विच मुसलमान फकीरां की तादाद बहुती है, पर वो नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते?
जदों सूफी फकीरां नूं सवाल किया कि आप जी कलमा क्यों नहीं पढ़ते, तो सूफी फकीर की कहन लगे कि असी तो सिर्फ अल्लाहू अकबर ही कहना है, बस अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। कलमा इस करके नहीं पढ़ते कि जदों असी पंक्ति उच्चारण करिए कि कोई खुदा नहीं है और इत्थे ही साडी मौत हो जाए। जदों असी किया कोई खुदा नहीं है सिवाय खुदा के, ये पंक्ति पूरी है। पर जे किधरे अद्धी पंक्ति ही उच्चारण हुई कि कोई खुदा नहीं है और इत्थे जे साडी मौत हो जाए तो वारिश साडा कौन होएगा फिर। इस करके असी ये पंक्ति नहीं पढ़ांगे, असी यही पंक्ति पढ़ांगे अल्लाहू अकबर, खुदा है खुदा है खुदा है। तो मैं अर्ज कर रहा सी, संतो राम नाम निस्तरीय उठत बैठत हर हर ध्याईए अनदिन शुक्रित करिए। उठदियाँ बैठदियाँ हर हर ध्याईए, हरि नूं जपदे रहो। फिर कहते ने अनदिन शुक्रित करिए, हर रोज़ ही चंगे कर्म करने ने, हर रोज़ हर रोज़। हुण आप जी अपने घर विच बैठे हो, छोटे छोटे बच्चे भी आप जी दी किरत ते निगाह रखते हैं, गुस्ताखी माफ। छोटे छोटे बच्चे, मैनू एक महापुरुष कहता सी, हुण तां खैर ये समा नहीं है, जमाना नहीं रहा। एक महापुरुष कहता सी, हरिनगर दे गुरमुख प्यारे रतन सिंह बैठे ने, असी इकट्ठे ही उन्हां महापुरुषों की संगत करते सी। वो कहते सी कि पुत्र जवान हो जावे ते इको ही मंजी ते माँ ते पुत्र ना बैठन, धी जवान हो जावे ते बाप ते बेटी इको मंजी ते ना बैठन। ये उन्हां दे ख्यालात ने। बच्चे सियाणे हो जान ते उन्हां दे माता पिता नूं चाहीदा है कि उन्हां दा आपस विच उठना बैठना किस ढंग दा होना चाहिए। बच्चे सियाणे हो गए, पर अजकल गुस्ताखी माफ ये ध्यान नहीं करते असी कि बच्चे सियाणे ने, असी की खेडां पई खेडते हैं। एक छोटी जी गल मैनूं कहण देना, गुस्ताखी माफ, चंगी ना लगे तो उन्होंने छड्ड देना, बुरा ना मनना। अजकल बच्चे वख वख किस्म का डे मनाते हैं। अज फलाना डे है, अज फलाना डे है, अज फलाना डे। एक दिन सीगा हग डे, मैनू खुद नूं पता नहीं हग डे हुंदा की है। एक दूजे नूं गल वकड़ी विच लेना, उसनूं कहंदे ने हग डे। साडी तां 28-30 साल तक दी उम्र इसी तरह गुजर गई, कुछ भी नहीं पता। छोटा जिहा बच्चा अपनी माँ नूं कहंदा है, माँ अज हग डे, अज पापा ने मैनू प्यार नहीं किया। ये हकीकत गल मैं सुना रही हूँ किसी दी, क्योंकि बच्चियां नूं सब पता हुंदा है। मम्मी कहती है, पुत्र तू बापू नूं पाड़े नहीं सुनाए होणगे, पाड़े नहीं सुनाए होणगे, इस करके उसने तेन प्यार नहीं किया। तो वो छोटा जिहा बच्चा की कहता है, फिर काम वाली ने किहड़े पाड़े सुनाए सी बापू नूं। बच्चा की कह गया, क्योंकि बच्चे की नज़र पई होएगी, उसने किहड़े पाड़े सुनाए सी। आप जी दा घर घर घट होवे धर्मशाला वध होवे, आप जी दा घर घर घट होवे मंदिर वध होवे। नहीं तो फिर बच्चे उही खेड खेडते हैं, फिर बच्चों नूं रोकना बड़ा औखा हो जाता है, बड़ा औखा हो जाता है। उठत बैठत हर हर ध्याईए अनदिन शुक्रित करिए, दिन रात चंगे कर्म कर शुकराना कर। तो ये सेध कित्थों लईए, सिक्ख्या कित्थों लईए? कहते ने फिर गुरु दे कोल बैठ। गुर पूरे कृपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी।
ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੋਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਲੋਚ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਲੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਾਂ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੋਚ।